Hello dear students, welcome to the class today. So, children, we are carrying on with the second chapter, Constitutional Design in Political Science, and we are discussing about the making of Constitution in India. Making of Constitution in India, like it's celebrating democracy. Yes, we do celebrate democracy. We talk about democracy in a very large manner. We identify democratic principles and democratic values in a manner that democracy is celebrated by each and every individual who is there in this country. And we celebrated 26 January 1950 को when it was implemented. Since then, आप देखिए 26 जनवरी का जो फंक्शन होता है, we all wait for the function, the greatest celebration that is ever there, and the way celebrations are being carried on, it shows and it proves that Indian democratic system is an example and is the best and is a real self where the people have given full respect to the decision of the leaders and to the decision of some of the greatest of the individuals who have laid down their lives and contributed a lot to for the development of the country and for all the different kind of practices. Now what we are discussing is, कल हमने जो discuss किया कि we have taken inspiration from various constitutions of the world. दुनिया में बहुत सारे constitutions हैं जिससे कि हमने एक ideal constitution बनाने की कोशिश की, जिसमें we have tried to get the important points from these constitutions, where we have seen the making of the Constitution of French Revolution, American Constitution, and we have also followed the ideals of Russian Revolution. Russian Revolution, one of the greatest of the revolution that has changed the political scenario in the whole world. पूरी दुनिया में इसका बहुत impact पड़ा, and that we have already studied in history. History में that's why it was told to you, that's why it was made very clear to you that how the constitution has changed the thought process of the people of the whole world. Got it? So आज अब हम क्या समझेंगे कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू कहाँ से हुआ. We have to understand each and every aspect of the making of Indian constitution. So inspiration drawn from these constitutions. ठीक है, इनके यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे और इनका जो फिलॉसफी थी, इनके जो आइडियल्स थे, दैट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी सारी चीजें डिस्कस की विच वॉज रिलेटेड टू दीज. इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं, वॉट एवर इज मेंशन्ड हियर, whatever is given here is one of the ideals through which we understand the revolutionary ideas of the people and the members, what did they want in the Constituent Assembly. So what we see is the Constituent Assembly. Constituent Assembly that was there. In this Constituent Assembly,
the drafting has happened, drafting of the document called the Constitution. It was done by the Assembly of Elected Representatives. ड्राफ्टिंग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक दो पन्ने का नहीं है. द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन was done by a body of by an assembly of elected representatives called Constituent Assembly. Assembly of elected representatives called Constituent Assembly. ये जो इलेक्टेड बॉडी थी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द important role क्या, it is the only body which has made the constitution. We have to respect, आज जितना भी constitution है, whatever rights we are enjoying, whatever privileges we are getting in the country, the credit goes to this constituent assembly. हमको कहीं ना कहीं से इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, इनका सम्मान करना ही पड़ेगा. जिस तरह का काम इन्होंने किया, छोटा मोटा काम नहीं किया है. इलेक्शन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946. कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held in साल भर पहले से प्रिपरेशन शुरू हो गया था, क्योंकि काम बड़ा था, काफी टाइम लगेगा, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जुलाई 1946 में ये इलेक्शंस हुए. फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो हुई दिसंबर 1946 में. दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. These dates for one markers are really important, where elections were held in July 1946 and first meeting was held in December 1946. First meeting was held in December 1946. जुलाई में इलेक्शंस हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट हो गए एंड उसके बाद इनकी मीटिंग चली दिसंबर 1946 में. आखिर ये मिलके डिसाइड करना चाह रहे थे क्या करना है, कैसे करना है. अब जैसे ही कंट्री डिवाइड हुआ, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एज यू नो, इंडिया एंड पाकिस्तान. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, उसमें पाकिस्तान के मेंबर्स अलग हो गए, वो अलग पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर्स अलग हो गए. इमेजिन व्हाट अ सिचुएशन. सेम कंट्री डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सेम मेंबर्स जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए जिनको इलेक्ट किया गया था, अब उसमें से सम पीपल विल बी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान एंड सम पीपल विल बी मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. व्हाट अ बैड फेट. किस्मत कितनी खराब चल रही थी उस समय इंडिया की कि इस तरह के सिचुएशन में इंडिया को डाला गया. इंडिया वाज पुट इनटू सच ए सिचुएशन which is very unfortunate. Okay, so ये बताना पड़ेगा that the constituent assembly was divided in two parts. One for पाकिस्तान, एक ग्रुप है जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, एंड अदर फॉर इंडिया, और दूसरा जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. तो अब क्या हो रहा था ना कि द ब्रिटिशर्स हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ द लाइन्स.
उनको जितना इंडिया के बारे में सोचना पड़ रहा था उतना ही दे हैव टू थिंक अबाउट पाकिस्तान। जाते जाते भी भाई इंडिया को तो डिवाइड कर दिया। द पॉलिसी एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल दैट दे हैव अप्लाइड इन इंडिया, नाउ it was applicable to the Pakistan as well. Now they have put the country into a big dangerous position. काफी सारी प्रॉब्लम्स में डाल दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने मेंबर्स थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, छोटा मोटा काम तो नहीं हो रहा है। इट इज अ बिग वर्क दैट इज बीइंग डन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ मेंबर्स हु वर देयर। Okay. The members who were there in this, the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution, the Constituent Assembly that wrote Indian Constitution had 299 members. 300 करीब लोग थे। अब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इतने मेंबर्स? यस, बिकॉज ये खाली बिहार का या उत्तर प्रदेश का या केरल का भविष्य तय नहीं कर रहे थे। दे वेर टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द होल कंट्री। तो रिप्रेजेंटेटिव्स वेर देयर फ्रॉम होल इंडिया। ये 299 मेंबर्स में यू कैनॉट से कि वो खाली इंडिया के थे या खाली केरला के थे या जम्मू कश्मीर के थे या कहा। देयर वेयर मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अब सपोज मैक्सिमम मेंबर्स आर देयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश का भला सोचेंगे। व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु आर देयर फ्रॉम मणिपुर एंड असम एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान? उधर के लोगों के बारे में यूपी को क्या पता है? सो फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोविंस एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी एरिया मेंबर्स वेयर इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ताकि वो अपने लोगों का भला अपने हिसाब से सोच पाए और उसी तरह से आगे के डिसीजंस ले पाए। The decisions have to be in coordination with the requirement of the people staying in the whole country. जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही डिसीजंस हैव टू बी टेकन। एंड असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दे बन कब गया था? 1946 में पहला इलेक्शन हुआ, दिसंबर में पहली मीटिंग हुई। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि इट अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन का टाइमिंग अलग है, इम्प्लीमेंटेशन का टाइमिंग अलग है। प्लीज, the assembly adopted constitution on 26 जनवरी का जो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 1949 में इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चलो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनली मेड। अब ये देखना है कि हाउ इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में इसको किस तरह से लागू करना है। एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इट हैज टू बी इन बोल्ड लेटर्स। इट केम into effect on 26 January 1950. Since then, we have never looked back. बहुत बड़ा काम हुआ था, बहुत बड़े एक a big document was written which was giving a future to India. इंडिया के लिए कुछ बहुत ही
अच्छा होने वाला था, इंडिया के लिए कुछ बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जाने वाला था और इंडिया आगे इसके बाद प्रोग्रेस ही करना था इंडिया को। इंडिया हैड टू प्रोग्रेस आफ्टर दिस, कहीं से भी इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखना था। सो अब एक्सेप्ट, अब ये पीपल सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन क्रिएटेड, लेकिन हम एक्सेप्ट क्यों करें? Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? Why should we accept constitution made 50 years ago? क्यों एक्सेप्ट करें? 50 साल पहले बना हुआ है, चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। लेकिन क्या है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन, एक तो कारण हमको ऑलरेडी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। 299 मेंबर्स वेयर देयर, जैसा वो चाहते थे हम वैसा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दैट। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर्स। Constitution does not reflect view of its members. उसमें जो मेंबर्स हैं उनके व्यूज के बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ब्रॉड कंसेंसस, बहुत सारे लोगों की मर्जी शामिल थी। कंसेंसस मीन्स वेयर एवरीबडीज विल इज इन्वॉल्व। प्लीज अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट एन स्मॉल थिंग, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस of its time। अपने समय का ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें बहुत सारे लोगों की मर्जी शामिल थी, ठीक है। कंसेंसस ऑफ मेनी पीपल वाज इन्वॉल्व इन दिस डॉक्यूमेंट, तो उसको इतनी आसानी से तो हम मना नहीं कर सकते हैं। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट। क्या हुआ ना, बहुत सारी कंट्रीज में, व्हाट अ मॉकरी, कितनी मतलब फन वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड इट वॉज री रिटन। मेनी कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोचो कि इतने 299 मेंबर्स ने मिलके इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंट बनाया है एंड एट लास्ट पीपल रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट। हाउ फन फिल्ड थिंग, कितना ज्यादा इसमें मजाक बनाया गया है, कितना ज्यादा इसको मजाक में लिया गया है। एंड मेनी कंट्रीज have had to rewrite their constitution afresh because basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. Many countries constitution was rewritten as people did not accept the rules mentioned in the document. कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स थे वो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे मेंबर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड बहुत सारे सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज रीरिटन एज मेनी एज पीपल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे पार्टीज कह लेंगे या फिर सोशल ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स थे
अब जैसे हमारे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया. When we see the constitution, when we check the constitution, we see that how much of importance is given to these groups. हर एक कैटेगरी का कितना ध्यान रखा गया है, सबको कितना सम्मान पहुंचाया गया है. Everybody has been dealt with so much of respect. तो like constitution एक्सेप्ट नहीं किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर. मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. And people do not accept it. लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. पीपल से कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नहीं है. दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेंट फॉर अस एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. नो वन एक्चुअली एक्सेप्ट इट एंड फॉलो इट. कोई उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, कोई फॉलो भी नहीं करता है. It is just like making fun of such a document. इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसमें इतने लोगों का एफर्ट्स गया हुआ है, उसका एक मजाक बनाने का ही यह तरीका है. एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस दैट आर देयर, द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट. हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी कंडीशंस बिल्कुल अलग है. ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी several groups have questioned some provisions of the constitution. कभी कभी कुछ ग्रुप्स ने कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने. भाई सवाल कोई भी उठा सकता है. इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एवरीबडी हैज द फुल राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. अपना व्यूज देने की छूट पूरे लोगों को है कंट्री में. कोई बड़ा छोटा नहीं है. हर एक तरीके के लोग अपना पॉइंट तो दे ही सकते. एंड लेकिन नो लार्ज सोशल ग्रुप, कोई भी ऐसा सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी हैज नेवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये बोला है, हो सकता है देयर कैन बी प्रॉब्लम विद सम प्रोविजंस. लास्ट 5 decades no political party or social group have questioned the legitimacy of constitution. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्यों है, कुछ चीजें इसमें चेंज कर देनी चाहिए. नो 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 नो. वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रोज रोज चेंजेस हो. सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ी चीज ये है, वी कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हैं. एंड वी नेवर डू इट, वी नेवर वॉन्ट टू डू इट, बट वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग अमेंडमेंट्स. हम उसमें सुधार कर सकते हैं. वी ब्रिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट वी डू नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज जस्ट लाइक मतलब लेजिटिमेसी. क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्यों हम उसको इतना पालन करें, क्यों हम उसको इतना माने, किसी ने भी इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं किया है. दिस शोज कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द. Children, today we have highlighted the importance of constitution. Yes, the way our constitution is important, we don't find it in any other country. Something, a great achievement. We really thank the people who have made this constitution, and we owe a lot of respect to them.
as they thought of making this constitution such a great constitution. And it was the will of the people. Of course, uh, independence we have got because of the Indian National Congress. थोड़ा बहुत डोमिनेशन कांग्रेस का था, but otherwise this constitution is one of the greatest and the largest. Let's respect the constitution, let's not bring changes, but yes, we are always open for amendments. Okay, children, so here we come to the end of today's class. See you in the next class. Till then, children, thank you so much. All the best to you.